Assalamu alaikum and good morning, my dear students. I hope that you all are doing well at home. Today is Friday, 9th April. This video is for English A. Today we are going to read and discuss unit number 1, PP Longstocking. So open your book of New Oxford Modern English. Students, in this story you will meet the characters of PP, टॉमी एंड एनिका. कैरेक्टर्स कहते हैं वो लोग जो कि एक स्टोरी में काम कर रहे होते हैं. ठीक है. सो ओपन बुक पेज नंबर 2, यूनिट नंबर 1. पीपी लॉन्ग स्टॉकिंग. पीपी इज़ द नेम ऑफ अ गर्ल एंड लॉन्ग स्टॉकिंग मीन्स सॉक्स. सो आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग अबाउट दिस स्टोरी that you will come to know about the girl who is very unusual in her dressing, in her behavior, and she talks very strange about everything. Okay? वो बड़ी अजीब बातें करती है हर चीज़ के बारे में और उसकी ड्रेसिंग बड़ी अजीब होती है. और वो क्या बातें करती है? So let's read in this story. When Pippi entered Villa Villicula for the first time, it was a lovely summer evening. The children next door, Tommy and Annika, were not at home. They had gone to visit their grandmother for a week, and so they had no idea that anybody had moved into the house next door. अब पिपी जो है ये जिस घर में शिफ्ट हुई है उस घर का नाम है विला विलेक्यूला, राइट. और ये अब हमें इसमें पता चल रहा है कि ये कौन सा मौसम है, गर्मियों का है. ठीक है. और उसके घर के करीब जो बच्चे हैं टॉमी और एनिका, वो लोग अपने घर पर नहीं थे जब ये यहाँ पर आई थी. ठीक है. वो अपनी ग्रैंड मदर के घर गए हुए थे. ऑन द वेरी फर्स्ट डे आफ्टर दे केम होम अगेन, दे स्टूड बाय द गेट लुकिंग आउट ऑन टू द स्ट्रीट. दे हैड नो आइडिया दैट देयर एक्चुअली वॉज अ प्लेमेट सो नियर. They were standing there considering what they should do and wondering whether anything exciting was likely to happen or whether it was going to be one of those dull days when they couldn't think of anything to play. And just then the gate of Villa Villicula opened and a little girl stepped out. She was the most remarkable girl Tommy and Annika had ever seen. She was Miss Pippi Longstocking, out for her morning walk. This is the way she looked. अब इस पैराग्राफ में जो सेकंड पैराग्राफ है इसमें ये बताया गया है कि जब टॉमी और अनिका वापस आए अपनी ग्रैंड मदर के घर से, वो अपने गेट के पास खड़े ये सोच रहे थे कि क्या अब हमारे साथ खेलने के लिए कोई होगा या नहीं, ये बस ऐसे बोरिंग डेज़ गुजरेंगे. और अभी वो ये चीज़ सोच ही रहे थे कि इतने में जो विला विलेक्यूला था उसका गेट खुला और वहाँ से एक लड़की बाहर आई. ठीक है. वो ऐसी लड़की थी कि हर कोई उसको मतलब देख के नोटिस कर सकता था, उसके बारे में कमेंट कर सकता था. ठीक है. और इसका नाम क्या था, मिस पीपी लॉन्ग स्टॉकिंग. और वो निकली थी बाहर मॉर्निंग वॉक के लिए. दिस इज़ द वे शी लुक्ड. अब वो दिखती कैसी थी, उसकी पर्सनालिटी कैसी थी, उसके कपड़े कैसे पहने हुए थे. Her hair, the color of a carrot, was braided in two tight braids that stuck straight out. Her nose was the shape of a very small potato and was dotted all over with freckles. It must be admitted that the mouth under this nose was a very wide one, with strong white teeth. Her dress was rather unusual. Pippi had made it herself. She had meant it to be blue, but there wasn't quite enough blue cloth, so Pippi had sewed little red pieces on it here and there. On her long thin legs she wore a pair of long stockings, one brown and the other black. She had on a pair of black shoes that were exactly twice as long as her feet. Her father had bought these shoes for her in South America so that Pippi would have something to grow into. She loved them and she never wanted to wear any others. In the third paragraph, you will come to know about
कि वो दिखती कैसी थी। सबसे पहले तो जो उसके बाल थे वो रेड कलर के थे, जैसा गाजर होती है, ठीक है। और वो बाल इतने टाइट बांधे हुए थे कि वो बिल्कुल बाहर की तरफ निकले हुए थे। और उसका जो नोज़ था वो बिल्कुल जैसे आलू होता है, और उसके नोज़ के ऊपर दाग थे, छोटे छोटे स्पॉट्स थे, ठीक है। और उसका जो मुंह था वो काफ़ी बड़ा था, और उसके जो कपड़े थे वो भी अजीब से थे। उसने वो खुद सिए हुए थे, और उसने इधर उधर रेड कलर के पीसेस लगाए हुए थे, ठीक है। अपनी तरफ से उसने उसको ब्लू बनाया था ड्रेस, लेकिन उसमें कहीं भी ब्लू कलर नहीं था, ठीक है। और उसके बाद उसने लंबी लंबी सॉक्स पहनी हुई थी। एक किस कलर की थी, ब्लैक, और दूसरी ब्राउन। और उसने जो शूज़ पहने थे उसके पाँव से डबल बड़े थे, ठीक है, जो कि उसके फादर ने उसको लेके दिए थे ताकि जब वो बड़ी हो जाए तो वो तब तक उसके पास रहें। और उसको वो शूज़ इतने पसंद थे कि वो उसके अलावा कुछ भी नहीं पहनती थी। But the thing that made Tommy and Annika open their eyes widest of all was the monkey sitting on the strange girl's shoulder. It was a little monkey dressed in blue pants, a yellow jacket and a white straw hat. अब वो दोनों इतने हैरान हुए ये देखकर कि उसके कंधे पे एक मंकी बैठा हुआ था, और उसने ब्लू कलर की पैंट पहनी थी, येलो जैकेट, और उसके सर पे एक हैट थी वाइट कलर की। Pippi walked along the street with one foot on the sidewalk and the other in the gutter. Tommy and Annika watched as long as they could see her. In a little while, she came back, and now she was walking backward. That was because she didn't want to turn around to get home. When she reached Tommy's and Annika's gate, she stopped. अब पीपी जो है वो जब चल रही थी, एक पाँव उसका गटर में होता और दूसरा पाँव उसका फुटपाथ पे। और जहाँ तक टॉमी और अनीका उसको देख सकते थे, वो उसको देखते और वो वॉक करने चली गई। और जब वो वापस आई तो वो सीधी चल के नहीं आ रही थी, बल्कि उल्टे पाँव चल के आ रही थी, ठीक है। वो इस वजह से कि वो टर्न लेके वापस मुड़ के घर को नहीं आना चाहती थी। और जब वो टॉमी और अनीका के पास आई वो रुक गई, ठीक है। The children looked at each other in silence. At last Tommy spoke. Why did you walk backward? अब जैसी वो आके रुकती है तो वो दोनों खामोश हो जाते हैं और एक दूसरे को देखते हैं। और आखिरकार टॉमी पूछता है कि आप बैकवर्ड क्यों चल के आ रही थी। आगे से वो क्या कहती है, Why did I walk backwards? said Pippi. Isn't this a free country? Can't a person walk any way she wants to? Let me tell you that in Egypt, everybody walks that way and nobody thinks it's the least bit strange. कहती है मैं पीछे क्यों चल रही थी, क्या ये एक फ्री कंट्री नहीं है। हाँ, मैं आपको एक बात बता दूँ कि इजिप्ट में सब लोग जो हैं वो पीछे की तरफ चलते हैं, और वहाँ पे तो ये अजीब बात नहीं मानी जाती। How do you know? asked Tommy. You have never been to Egypt, have you? कहते क्या कभी इजिप्ट गई भी हो, आपको कैसे पता। I have never been to Egypt, indeed I have. That's one thing you can be sure of. I have been all over the world and seen many things stranger than people walking backward. I wonder what you have said if I had come along walking on my hands the way they do in the farthest Asia. कहती है मैं क्यों नहीं गई इजिप्ट। मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं तो पूरी दुनिया घूम के आई हूँ, ठीक है। और मैंने दुनिया में लोगों को बहुत अजीब अजीब काम करते देखा है। और तब क्या होता कि अगर मैं वापस अपने हाथों पे चल के आ रही होती, जैसा कि बहुत दूर दराज एशिया के इलाकों में होता है। नाउ यू मस्ट बी लाइंग, सेड टॉमी। पीपी थॉट फॉर अ मोमेंट। यू आर राइट, शी सेड सैडली, आई एम लाइंग। फिर उदास होकर कहती है हाँ वाकई मैं तो झूठ बोल रही हूँ। Open page number 4. It's wicked to lie, said Annika, who had at last gathered up enough courage to speak. अब आखिरकार एनिका जो है वो भी हिम्मत करके बोलती है और कहती है लेकिन झूठ बोलना तो बुरी बात है। Yes, it's very wicked to lie, said Pippi, even very sadly. But I forgot it now and then. And how can you expect a little child like me to always tell the truth when my mother is an angel and my father is a king of a cannibal island, and I have sailed on the ocean all my life? Then Pippi smiled and continued, and let me tell you that in the Congo
There is not a single person who tells the truth. They lie all day long, begin at 7 in the morning and keep on until sundown. So if I should happen to lie now and then, you must try to excuse me and to remember that it is only because I stayed in the Congo a little too long. We can be friends anyway, can't we? कहती है हाँ ये बोलना झूठ बोलना बुरी बात है, लेकिन मैं जो हूँ मेरी मदर भी नहीं है, उसकी मदर की डेथ हो जाती है, ठीक है। और कहती हूँ मेरे फादर जो हैं वो एक आदमखोर हैं, और मैंने तो सारी उम्र जो है वो ओशंस पे गुजारी है, मतलब सफ़र करते हुए गुजारा है। और लेकिन एक बात बताऊँ कि कॉन्गो में लोग जो हैं वो बहुत झूठ बोलते हैं, हर बंदा झूठ बोलता है। वो सुबह मॉर्निंग में झूठ बोलना शुरू करते हैं और शाम को 7 बजे तक वहाँ पे सिर्फ झूठ बोला जाता है, ठीक है। और अगर दोबारा मैं इस तरह से कभी झूठ बोलूँ तो मुझे आप लोग बता देना। फिर वो कहती है कि कैन वी बी फ्रेंड्स, क्या हम फ्रेंड्स हो सकते हैं? ओ श्योर सेड टॉमी एंड रियलाइज्ड सडनली दैट दिस वाज नॉट गोइंग टू बी वन ऑफ दोज डल डेज। टॉमी आगे से कहता है हाँ हाँ क्यों नहीं। और फिर उसको समझ आती है और वो ये इस चीज़ को रियलाइज़ करता है कि अब उसके दिन अच्छे गुजरेंगे, क्योंकि उनके साथ एक खेलने वाली लड़की आ गई थी। बाय द वे वुड यू कम एंड हैव ब्रेकफास्ट विद मी, आस्क्ड पीपी। पीपी पूछती है कि मेरे साथ अब आप लोग नाश्ता करोगे? वाई नॉट सेड टॉमी, कम ऑन लेट्स गो। ओह येस लेट्स सेड एनिका। तो आगे से टॉमी कहते हैं हाँ हाँ क्यों नहीं चलो। फिर अनिका भी कहती है हाँ हाँ ठीक है। बट फर्स्ट आई मस्ट इंट्रोड्यूस यू टू मिस्टर नेल्सन, said Pippi, and the little monkey took off his cap and bowed politely. और फिर वो कहती है लेकिन मैं आपको पहले अपने दोस्त से मिलवा दूँ, और ये है मिस्टर निल्सन। और मंकी क्या करता है, अपनी हेड उतारता है और झुक जाता है अपना जो हैं टॉमी और एनिका के आगे, और सब हंसने लग जाते हैं, ठीक है।